रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राम। वैष्णव जन तो कि वो मंच पर आकर हमें संबोधित करें।
Good morning. On the occasion of Lal Bahadur Shastri's 116th birthday and Mahatma Gandhi's 151st birthday, my best wishes to all of you. In fact, the Mahatma Gandhi's ideas are never out of date. I was recently reading some of his writings, and it was very fascinating to see in those times, I think, what he was visualizing for the future of India, and the purity of his thoughts were very, very impressive. In fact, his ideas about rural areas, his ideas about education, even his ideas about what a teacher needs to be, which are very relevant to all of us, I think are very relevant even today. When I see, these complaints from students about somebody not behaving properly, somebody doing this to me, doing that to me, I think all of us need to go back and look at, some of these thoughts and see, how much we can imbibe in the current context. For example, his ideas about rural areas. He was always visualizing rural areas as self-sustaining units, I think, which we have completely lost now. And because we have lost those ideas of making the rural areas self-sustaining or self-reliant, like what we are calling Atmanirbhar Bharat now, he was visualizing Atmanirbhar Bharat for the rural areas in those days. And I think because we have lost those thoughts now and lost those principles on which we need to build the country, I think now there is so much of migration from rural areas to cities, and it does two things. First of all, because the rural people come to the big cities, it creates slums in these cities. The kind of conditions they live in are pathetic, and it also creates labor problems in the villages, and as a result, the rural areas suffer more. I think, we need to go back to some of his thoughts and see, how we can implement these in the current context. And some of these look little bit utopian by the modern times, but I think they are still relevant. For example, I just read out to you his thoughts on what the rural areas, are supposed to be like. He says, I quote, "Thus, every village's first concern will be to grow its own food, crops, and cotton for its cloth. It should have a reserve for its cattle, recreation and playground for adults and children. Then, if there is more land available, it will grow useful money crops, thus excluding ganja, tobacco, opium and the like. The village will maintain a village theatre, school and public hall. It will have its own water works, ensuring clean water supply. This can be done through controlled wells or tanks. Education will be compulsory up to the final basic course. As far as possible, every activity will be conducted on the cooperative basis. There will be no castes such as we have today and their graded untouchability. Non-violence and its technique of non-cooperation will be the sanction of the village community. There will be a compulsory service of village guards who will be selected by rotation from the register maintained by the village. The government of village will be conducted by a council of 5 persons annually elected by the adult villagers, male and female, possessing minimum prescribed qualifications. These will have all the authority and jurisdiction required. Since there will be no system of punishments in the accepted sense, this council will be the legislature, judiciary and executive combined to operate for its year of office. I think that is how he was visualizing the rural areas. Now, I don't think we have achieved any of this. If at all, we have actually gone towards the other extreme. And even his thoughts on education have been very pure. In fact, the national education policy tried to capture some of these ideas, but I think the implementation is still going to be, a critical step for the education policy. For example, he says education should create useful, responsible and dynamic citizens. By education, all the hidden powers of child should develop according to the community of which he is an integral part. Education should achieve the harmonious development of child's body, mind, heart and soul. And that's what Mahatma Gandhi wrote in his writings. I think, even on the teachers, for example, I think this is something very relevant for all the teachers. It doesn't matter whether you are an IIT professor or a primary school teacher.
teachers are teachers. I think, I would like to associate myself first as a teacher and then as anything else, because our job is to go to the classroom and deliver those lectures and make better human beings out of our students. And Mahatma Gandhi's ideas about teachers, a teacher who establishes rapport with the taught, becomes one with them, learns more from them than he teaches them. He who learns nothing from his disciples is, in my opinion, worthless. Whenever I talk with someone, I learn from him. I take from him more than I give him. In this way, a true teacher regards himself or herself as a student of his students. If you will teach your pupils with this attitude, you will benefit much from them. That is what he wrote in 15th February 1942 about the teachers. I think that's again, very relevant for the modern times again. In fact, Einstein, as you all know, called him, generations to come will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth. That is what Einstein, who was contemporary to him, actually said. One of the quotes of Gandhi, which I find most profound and which are very relevant for the current times, where we are fighting each other on so many grounds and for so many reasons. I think this is the quote of Gandhi which we should frame everywhere and we should follow in our day-to-day lives. He says, "I do not want my house to be walled in on all sides and my windows to be stuffed." He wants an open society. "I want the culture of all lands to be blown about my house as freely as possible, but I refuse to be blown off my feet by any." I think you have your own roots, but you should allow everything else to flow through you, and you should benefit from all the good things that are there in every culture. I think these are some of his greatest thoughts, and as one calls him half-naked fakir. That is what Churchill called him. And he was a great man, and his ideas were so pure. He visualized in India which would have made India a supreme power in the world. I think we have lost all of it. I think time has come for all of us to go back to that purity of thoughts and see how we can benefit from them and what we can do in the modern times, where technology is playing such a vital role now. That purity of his thoughts and the modern technology, how we can find an optimum balance and live a balanced life. I think that is what is very much required, and I hope as an institution too, we will try to live up to his ideals and his standards. And I think we all need to strive to be better human beings. Unless we achieve that, I don't think there is any future for this country. No policy, nothing is going to change us unless we all strive to become better human beings. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पुनः मंच पर वापस पधारें, क्योंकि अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं प्रोफेसर विपिन कुमार जी को, जो सहायक प्रोफेसर हैं टेक्सटाइल और फाइबर इंजीनियरिंग विभाग में। इनके और प्रोफेसर अनुराग एस राठौर के मार्गदर्शन में आईआईटी दिल्ली के ही 2 स्टार्टअप्स ने इस भीषण विभीषिका कोविड-19 से बचाव हेतु संरक्षण लोशन, कवच एंटीवायरल परिधान, कवच मास्क व हैंड सैनिटाइजर का निर्माण संपूर्णतः स्वदेशी माध्यम से किया है। यह न केवल भारत को अपितु संपूर्ण विश्व को इस वैश्विक महामारी से उबारने में सहयोग करेंगे तथा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत एवं स्वस्थ भारत अभियान की तरफ कोविड किट हमारी मजबूती से अग्रसर कराएगी। आप सभी आदरणीय माननीयों का बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम के अगले पड़ाव में अब गांधी जी
एवं शास्त्री जी के जीवन पर आधारित कुछ चलचित्र आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। जब मैं सूर्यास्त या चांद की सुंदरता से खुश होता हूँ तो मेरी आत्मा मुझे निर्माता की पूजा में और अधिक तल्लीन कर देती है। महात्मा गांधी जी अहिंसा के परिचायक थे। उनके जीवन में ऐसे कई कार्य हैं जिनसे सभी को शिक्षा मिलती है। महात्मा गांधी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, इनकी माता का नाम पुतलीबाई और इनके पिता करमचंद गांधी, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, इनके बच्चों का नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देव। प्रसिद्ध वाक्य इनका अहिंसा परमो धर्म। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी कहते हैं, जिन्हें देश के राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, इसलिए इन्हें प्यार से बापू कहकर पुकारा जाता है। देश को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकालने में गांधी जी का योगदान जगत विदित है। अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर चलकर इन्होंने देश को एकजुट कर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने की प्रेरणा दी। गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश की जनता को विश्वास दिलाया कि ये स्वतंत्रता की लड़ाई सबकी लड़ाई है। एक छोटा सा योगदान भी देश की आजादी के लिए अहम हिस्सा है। इस तरह से देश की जनता ने स्वतंत्रता की लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाया और एकजुट होकर 200 वर्षों की गुलामियों की बेड़ियों को तोड़ दिया। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के सिद्धांतों से पूरा विश्व परिचित है और आदर के भाव से उन्हें याद करता है। इसलिए इस गांधी जयंती 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। गांधी जी ने सत्य अहिंसा के बल पर देश को आजादी दिलाई। आज के समय में ये सोचकर ही सवालों की झड़ी लग जाती है कि कैसे संभव हुआ होगा सत्य अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को बाहर करना, पर यह संभव किया गया था मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, जिसके लिए उन्होंने कई सत्याग्रह, कई आंदोलन किए, जिसमें देशवासियों ने इनका साथ दिया। इनके कहने मात्र से देशवासी एकजुट हो जाते थे, जेल जाने को तत्पर रहते थे। उन्होंने कहा था, ताकत 2 प्रकार की होती है, एक जो किसी को सजा के डर के रूप में मिलती है और दूसरी जो प्यार देकर मिलती है। प्यार से मिली ताकत 1000 गुना ज्यादा होती है डराकर मिली ताकत की तुलना में। गांधी जी एक साधारण व्यक्ति थे, उसी तरह उनके जीवन के भी वही सामान्य लक्ष्य थे, पढ़ना एवं कमाना, जिसके लिए उन्होंने इंग्लैंड विश्वविद्यालय से बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। डिग्री लेने के बाद वह स्वदेश आकर आजीविका के लिए जुट गए, लेकिन मन मुताबिक कुछ नहीं कर पाए। आखिरकार उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक नौकरी के लिए जाना स्वीकार किया। ये काल 1893 से 1914 तक था। कहा जा सकता है कि इसी काल ने गांधी जी को एक साधारण व्यक्ति से स्वतंत्रता सेनानी बनने की तरफ प्रेरित किया होगा। उन दिनों दक्षिण अफ्रीकी में काले गोरे का भेद चरम सीमा पर था, जिसका शिकार गांधी जी को भी बनना पड़ा। एक घटना जिसे हम सब ने सुना है। उन दिनों गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी उन्हें थर्ड क्लास में जाने को कहा गया, जिसे उन्होंने नहीं माना और इसके कारण उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। उन्हें जीवन व्यापन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि न्याय की उम्मीद में जब न्यायपालिका से गुहार की गई तब भी उन्हें अपमानित किया गया। इन सभी गतिविधियों के कारण गांधी जी के मन में कहीं न कहीं स्वदेश की परतंत्रता का विचार तेजी पर था। उन्हें महसूस हो रहा था कि देश के लोग किस तरह से अधीन होकर अपने आप को नित्य प्रतिदिन अपमानित होता देख रहे हैं। शायद इसी जीवन काल के कारण गांधी जी ने स्वदेश की तरफ रुख लिया और देश की आजादी में अपने आप को समर्पित कर दिया। अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में एक महासभा में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार किया गया।
जलियांवाला बाग चारों तरफ से लंबी दीवारों से बना हुआ था और केवल एक छोटा सा रास्ता था। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेज जनरल डायर ने 90 सिपाहियों के साथ बिना ऐलान किए गोलीबारी शुरू कर दी। लगभग 3000 लोग मारे गए। कई गोलियों से छल्ली हुए तो कई भगदड़ में दब गए और कई डर के कारण बाग में बने कुएं में कूद गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने देशव्यापी स्तर पर असहयोग आंदोलन किया। ये 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। इस आंदोलन में पहली बार सीधे शासन के विरुद्ध आवाज उठाई गई। स्वराज आंदोलन शुरू किया गया। दांडी यात्रा निकालकर नमक कानून तोड़ा एवं अपना सहयोग अंग्रेजों के सामने प्रकट किया। इस तरह देश के हर कोने में लोगों ने गांधी जी को फॉलो करना शुरू किया और पूरे देश स्वतंत्रता की इस लड़ाई का हिस्सा बनने लगा। इन सब के बीच कई बार गांधी जी को जेल भी जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देश में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया गया। ये एक ऐसा समय था जब ब्रिटिश हुकूमत युद्ध में फंसी हुई थी। दूसरी तरफ देश की जनता जाग उठी थी। नरम दल एवं गरम दल दोनों ही अपने जोरों पर देश में आंदोलन को चला रहे थे। सभी नेता सक्रिय थे। सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ दिल्ली चलो का ऐलान कर दिया था। इस प्रकार पूरे देश में खलबली के बीच भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन देश में आंदोलन अपनी तेजी से बढ़ रहा था। फिर उन्होंने कहा, किसी एक गलती को बहुत सहारा मिल जाए तो वो सच नहीं बन सकती और ना ही सच गलत हो सकता है, भले वो दिखाई ना दे। सच हमेशा खड़ा होता है, भले ही उसे किसी भीड़ का सहारा ना मिले, क्योंकि सत्य आत्मनिर्भर होता है। 1942 के बीच देश की स्थिति में बड़े बदलाव आए। अंग्रेजी हुकूमत हिलने लगी। देश को एकजुट रखना भी मुश्किल था। जहां मिली, उनका कहना बहुत सही था। आपको इंसानियत पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए। इंसानियत एक सागर की तरह है। अगर कुछ बूंदे सागर में मैली हो तो सागर गंदा नहीं हो सकता। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। वे प्राथमिक शाला के अध्यापक थे और इन्हें मुंशी जी कहकर संबोधित किया जाता था। इनकी माता का नाम राम दुलारी था। लाल बहादुर जी को बचपन में परिवार के सदस्य नन्हे कहकर बुलाते थे। बचपन में ही शास्त्री जी के पिता का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद लाल बहादुर जी की माता इन्हें लेकर अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर आ गई। कुछ समय पश्चात इनके नाना का भी देहांत हो गया। इनकी प्राथमिक शिक्षा मिर्जापुर में ही हुई एवं आगे के अध्ययन हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुआ। लाल बहादुर जी ने संस्कृत भाषा में स्नातक किया था। काशी विद्यापीठ में इन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। इस वक्त के बाद से ही इन्होंने शास्त्री को अपने नाम के साथ जोड़ दिया। इसके बाद इनको शास्त्री के नाम से जाना जाने लगा। 1928 में इनका विवाह ललिता शास्त्री के साथ हुआ। इनके 6 संतान हुई। लाल बहादुर शास्त्री एक जवान सत्याग्रही। स्वतंत्रता की लड़ाई में शास्त्री जी ने मरो नहीं मारो का नारा दिया, जिसने पूरे देश में स्वतंत्रता की ज्वाला को तीव्र कर दिया। 1920 में शास्त्री जी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े और भारत सेवक संघ की सेवा में जुड़ गए। ये एक गांधीवादी नेता थे, जिन्होंने संपूर्ण जीवन देश और गरीबों की सेवा में लगा दिया। शास्त्री जी सभी आंदोलन एवं कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करते थे, जिसके फल स्वरूप कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इन्होंने सक्रिय रूप से 1921 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी यात्रा एवं 1942 में भारत छोड़ो में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के नेता। स्वतंत्र भारत में ये उत्तर प्रदेश की संसद के सचिव नियुक्त किए गए। गोविंद वल्लभ पंत के
मंत्रिमंडल की छाया में इन्हें पुलिस एवं परिवहन का कार्यभार दिया गया। इस दौरान शास्त्री जी ने पहली महिला को कंडक्टर नियुक्त किया एवं पुलिस विभाग में उन्होंने लाठी की बजाय पानी की बौछार से भीड़ को नियंत्रित करने का नियम बनाया। 1951 में शास्त्री जी को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री हमेशा पार्टी के प्रति समर्पित रहते थे। उन्होंने 1952, 1957 और 1962 के चुनाव में पार्टी के लिए बहुत काम कर प्रचार प्रसार किया एवं कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाया। शास्त्री जी की काबिलियत को देखते हुए इन्हें जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक मौत के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, परंतु इनका कार्यकाल बहुत कठिन था। पूंजीपति देश एवं शत्रु देश ने इनका शासन बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना दिया था। 1962 के युद्ध के बाद भारत बहुत ही कमजोर हो चुका था और नेहरू जी की मृत्यु ने इसे और भी कमजोर बना दिया था, क्योंकि नेहरू जी का बहुत ही ऊंचा ओहदा था विश्व पॉलिटिक्स में। 1965 में पाकिस्तान ने ये सोचा कि भारत अभी कमजोर है। पाकिस्तान के पास अमेरिका द्वारा दिए हुए बहुत ही एडवांस्ड हवाई जहाज भी हैं और भारत के प्रधानमंत्री यानी कि हमारी शास्त्री जी का कद काठी की वजह से बहुत ही कमजोर व्यक्ति प्रतीत होते थे। परंतु शास्त्री जी ने और हमारी आर्मी ने 1962 में युद्ध के हार के बाद काफी कुछ सीखा था और कमजोर हथियारों के बावजूद पाकिस्तान को युद्ध में धूल चटा दी थी। उस समय हमारी सेना लाहौर तक पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान ने शास्त्री जी को कमजोर समझकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। अचानक ही 1965 में 7:30 बजे पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बैठक बुलाई। इस बैठक में तीनों रक्षा विभाग के प्रमुख एवं शास्त्री जी सम्मिलित हुए। विचार विमर्श के दौरान प्रमुखों ने लाल बहादुर शास्त्री को सारी स्थिति से अवगत कराया और आदेश की प्रतीक्षा की। तभी शास्त्री जी ने जवाब में कहा, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। इस तरह भारत पाक युद्ध के दौरान विकट परिस्थितियों में शास्त्री जी ने सराहनीय नेतृत्व किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे देश में एकता आई और भारत ने पाक को हरा दिया, जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की थी, क्योंकि 3 वर्ष पहले चीन ने भारत को हराया था। बाद न हो जाए ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। आज समस्त विश्व पर आई इस आपदा के बीच भारत को संभालने का जिम्मा चिकित्सकों के साथ साथ हमारे सैनिटाइजेशन कर्मचारियों ने भी अपने कंधों पर उठाया है। निष्काम भाव से वह लगातार हमारी रक्षा करते आ रहे हैं। अतः इन्हीं कोरोना योद्धाओं को बीआरसीए की ओर से एक भाव विभोर श्रद्धांजलि इस चलचित्र के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है। अपने देश के लिए ये सब काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। अपना भी ध्यान रख रहे हैं, दूसरों का भी ध्यान रख रहे हैं, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, साथ साथ देश की सेवा कर रहे हैं, हमें बहुत गर्व है। इस परीक्षा की घड़ी में भी ये दे रहे हमें राहत। स्वच्छता अभियान में तो कहलाते ये सैनिटेशन वर्कर्स, पर वास्तव में ये है हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स। जी हाँ, ये वो कर्मवीर हैं जिनकी साफ सफाई से ही है देश की शान, जिनका हमारे स्वास्थ्य में है अहम योगदान। आइए करें हम इनके जज्बे को दिल से सलाम। बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई इस महामारी में कोई तो किसी की मदद कर रहा है।
हमारे काम को देख के उन्होंने ये किया हमारे लिए। खुशी हमें किसी ने समझा। छात्रावास के कर्मचारी चलचित्र द्वारा अपना अनुभव साझा करेंगे। सर्वप्रथम अरावली छात्रावास से श्री रामपाल जी। 12 साल काम करते हुए स्कूल ने ये नाम दिया। थैंक यू। छात्रावास से श्री राजेंद्र सिंह जी। 28 साल से काम कर रहा हूँ और बड़ी मेहनत और लगन से काम करता हूँ। आगे भी इसी तरह जो भी मेरा टाइम बचा है आगे भी इसी तरह काम करता रहूँगा। थैंक यू। शिवालिक छात्रावास से श्री खुशीराम जी। ये हमें 2 अक्टूबर का अवार्ड मिला, उसके लिए धन्यवाद। पाल जी। ये मुझे अवार्ड दिया जा रहा है इंस्टीट्यूट का, धन्यवाद। अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छे काम करता रहूँगा। ज्वालामुखी छात्रावास से श्री सनी। ये जो मुझे अवार्ड दिया गया है उसके लिए बहुत धन्यवाद। आगे मैं और अच्छा काम करके दिखाऊंगा। कैलाश छात्रावास से श्री महेश कुमार जी। ये इनाम जो दिया जा रहा है उसके लिए धन्यवाद। आगे भी और अच्छा काम करेंगे। हिमाद्री छात्रावास से श्री विनोद कुमार जी। जो आप लोग दे रहे हो बहुत धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी आपकी। इंस्टीट्यूट का, फैकल्टी का, सबका धन्यवाद और इस अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। संस्कार छात्रावास से श्री दुर्गा बहादुर जी। मुझे ये इनाम मिलके बड़ी खुशी हो रही है। आगे भी जाके इससे भी अच्छा काम करूं और इनाम मिले। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। नीलगिरी छात्रावास से श्री सतीश कुमार जी। मेरे को ये इनाम दिया जा रहा है और आगे भी इससे अच्छा काम करूंगा। थैंक यू। तत्पश्चात मेसर्स क्वेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निस्वार्थ भाव से छात्रावास और अकादमिक क्षेत्र में निरंतर सेवा प्रदान करने वाले दृढ़ संकल्पित कर्मचारी चलचित्र के माध्यम से अपना आभार प्रकट करेंगे। सर्वप्रथम श्री मोहम्मद अदनान जी। थैंक यू मेरी कंपनी क्विज क्रॉप का और IIT दिल्ली का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस अवार्ड से नवाजा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। श्री ग्रेगोरी टोपो जी। ये जो अवार्ड हमें मिल रहा है उससे मैं बहुत खुश हूँ। आगे इससे और अच्छा काम करके दिखाऊंगा। मुझे श्री छोटेलाल जी। और आगे ये जो अवार्ड हमें मिल रहा है उससे मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इनाम मिला है सर, और आगे चल के आगे काम और बढ़ाऊंगा श्री सर जी। जय नारायण जी। थैंक। ये जो मुझे इनाम दिया गया है इसका आभारी हूँ मैं। इस लायक समझा मुझे और आगे अच्छा हो और अच्छा काम करूँगा। अजय जी। मुझे ये अवार्ड मिल रहा है, मैं इसे लेकर बहुत खुश हूँ और आगे चलकर मैं IT में और अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। विजेंद्र सिंह जी। मैं IT के शुक्रगुजार हूँ जो आज मुझे ये अवार्ड दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल जी। ये जो आपने सम्मान दिया है इसका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत अच्छा लगा। श्री मंजू देवी जी। जो भी मेरे को अवार्ड आज मिला है उससे मैं बहुत खुश हूँ और आगे अच्छा काम करूँगी, कंपनी के नाम रोशन करूँगी। जय गीत मिला, मैं खुश हूँ।
आगे से अच्छी काम करके कंपनी के दिखा लेंगे। आईटी के अंदर अच्छा लगता है, कोशिश करूंगा आगे और अच्छा काम करने के लिए। सभी सम्मानित व्यक्तियों को उपहार स्वरूप खादी के वस्त्र एवं उत्पाद प्रदान किए गए हैं। खादी ही हमें एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएगी तथा बापू की निशानी बन इस आधुनिक युग में हमारे साथ रहेगी। संस्थान में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान को फलीभूत करने में चिंतन संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे आवासों एवं अन्य स्थानों का सफल कचरा प्रबंधन एवं निस्तारण चिंतन संस्था द्वारा ही किया जाता है। इनके उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित अगला चलचित्र आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। चिंतन एनवायरमेंटल रिसर्च एंड एक्शन ग्रुप आईआईटी कैंपस में वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी निभा रहा है। इसके लिए सबसे पहले चिंतन के कर्मचारी घर घर जाकर गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग इकट्ठा करते हैं। पूरे कैंपस से एकत्रित कूड़ा चिंतन के वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर में उतारा जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर में कूड़ा बांटने के लिए भाग बने हुए हैं, जैसे गीला कूड़ा, पेपर, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, लोहा इत्यादि। कूड़ा उतरने के बाद कुछ चिंतन कर्मचारी मिलकर इस कूड़े में से पहचान करके उसको बांटते हैं और अपने भाग तक पहुंचाते हैं। अपने भागों तक इकट्ठा होने के बाद वो कूड़ा रिसाइकिल या अपसाइकिल होने के लिए बाहर भेज दिया जाता है या कंपोस्ट पिट के जरिए खाद में बदल दिया जाता है। और इस तरह चिंतन आईआईटी कैंपस में वेस्ट मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहा है। बहुत खूब काम किया जा रहा है हमारे कैंपस में, तो इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका हौसला अफजाई कीजिए। अब वक्त है महात्मा गांधी जी एवं शास्त्री जी को अपनी संगीत में श्रद्धांजलि अर्पित करने का। इस हेतु सर्वप्रथम मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की श्री हरि सत्संग सभा का आह्वान करता हूं, जो इस वर्ष ऐसे कठिन समय में भी ऑनलाइन माध्यम से लघु चलचित्र द्वारा इस कार्यक्रम को अपनी संगीत में प्रस्तुति से सुशोभित करेंगे। हमें आजाद बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हमें आजाद बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। देखी हमें आजाद बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। देखी हमें आजाद बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, धरती पे लड़ी तुमने अजब ढंग की लड़ाई। दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दागी न कभी तोप न बंदूक चलाई। दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दागी न कभी तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी नकीने तूने चढ़ाई, दुश्मन के किले पर नगरी तुमने चढ़ाई। कुंवारे फकीर खूब करामात दिखाई, कुंवारे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल।
जाति बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, सतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, सतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, सतरंज बिछा कर वहाँ बैठा था जमाना। लगता था मुश्किल है फिरंगी को हराना, लगता था मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर से बड़े जोर की दुश्मन भी सताना, टक्कर से बड़े जोर दुश्मना को सताना, टक्कर से बड़े जोर की दुश्मन भी सताना, टक्कर को बड़ी जोर से दुश्मन से सताना। पर तू भी था बड़ा बापू उस्ताद पुराना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कस के दाव के उल्टी सभी की चाल, मारा वो कस के दाग सब उल्टी सभी की चाल, मारा वो कस के दाव के उल्टी सभी की चाल, मारा वो कस के दाव उल्टी सभी की चाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, दे दी हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, जब तब तेरा बिगुल बना जवान चल पड़े, जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, जब जब तेरा बिगुल बना जवान चल पड़े। मजदूर चल पड़े थे किसान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे किसान भी चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े। हिंदू और मुसलमान सिख पठान चल पड़े, हिंदू और मुसलमान सिख पठान चल पड़े। कदमों में तेरी कोटि कोटि प्राण चल पड़े, कदमों में तेरी कोटि कोटि प्राण चल पड़े। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। जय हिंद। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय, जगत जननी सीता मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय। के छात्रों ने भी बापू के लिए अपना प्रेम और सम्मान एक म्यूजिक वीडियो में दर्शाने का खूबसूरत प्रयास किया है। तो प्रस्तुत है आप सबके समक्ष BRCA म्यूजिक क्लब का एक सुंदर संगीत चलचित्र। पुकारे आजा रे अब आजा रे, भूले हम राहे हमें राह दिखा रे, आजा रे राह दिखा रे। मेहनत पहने लाठी पकड़े चलते थे हो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे।
संभाल के। वंदे मातरम, 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 वंदे दुश्मन है बना रे, नफरत की आंधी बहती रे, वैशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओ झूठ का बढ़ता जाए राज, ओ बापू अपने ही हो गए धोखेबाज। आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बाबू मेरे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पाई पाई में इंसान बेकार, जान ये हो गए शस्त्र रे। सोया ज़मीर बापू फिर से जगा दे, आजा रे बापू मेरे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, आरसीए गांधी जयंती सप्ताह के रूप में मनाएगा, जहां विभिन्न कलाओं की प्रतियोगिताएं छात्रों के मध्य आयोजित की जाएंगी, जो बापू के जीवन एवं उनकी विचारधारा पर आधारित होंगी। अतः सभी छात्र इसमें उत्साहपूर्वक भाग लें एवं बापू को और अधिक गहराई से जानने का अवसर प्राप्त करें। इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आज जिनके कारण ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, उनको धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु मैं सह संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रमित कुमार चौधरी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। For the vote of thanks, I would really like to thank our Director Professor Rao and all the office bearer of the administration who have come out here together, and are present in the seminar hall. Everybody else who has come to grace this occasion, and also people who are watching this program live online, just because of the present circumstances we cannot gather out here. Congratulations to all the awardees for their selfless and tireless work. They have shown us how we should be working, keeping the spirit true and high. Thanks to the members of the Hari Satsang Sabha for such a melodious ode. Thanks to the members of the BRC Music Club for coming together. They have shown that even if we are far, it doesn't matter. We are always strung together by a common thread and theme. Thanks in particular to Mr. Mukesh Chand, Mr. Abhilash, Mr. Ajay, and the whole team of the Student Affairs
for bringing this event or making this event happen, bringing all of us together. Thanks also to Prashant and his team for arranging to make this program go live. And I would also like to thank all the members of the student community who have been working behind a week-long series of activities that Kushagra just mentioned. Please come out and participate. The flyer was given out here. Go to the links. It will just only make it more and more appealing if you come in and participate in good numbers. Finally, thanks to Kushagra for being such a graceful host. Thank you. जयंती के उपलक्ष्य पर हमारे समक्ष पधारे।